तो गाइस शेड्यूलिंग कर ली, अलार्म लगा लिया, जर्नलिंग कर ली, राइटिंग कर ली, सुबह टाइम से उठना शुरू कर दिया और अब पूरा शेड्यूल प्रिपेयर्ड है एंड यू आर फॉलोइंग इट। लाइफ सेट। Guys, fortunately or unfortunately, it doesn't work like that. So you might wanna use your friends. मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तो बेवफा। Guys, friends are like the weirdest relationships we have. हमें नहीं पता हमारे साथ ये लोग क्यों घूमते हैं, ये strangers, और हमें अपने साथ क्यों रखते हैं. We have no idea. वहाँ आंटियों की लड़ाई हो गई, करो कैमरा निकालो, कैमरा निकालो, कैमरा निकालो. बट इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ use your friends. So before you throw your judgment at me, hear me out. सुन तो लो कहना क्या चाह रहा हूँ. Use your friends in a different way. Hear me out. See guys, the point of this video is not कि तुम जाके ऐसे ऐसे friends बनाओ जिनसे तुम अपने काम निकलवा सको. That's not what I'm trying to say. The point of this video is just to point to the fact कि हम already अपने दोस्तों का कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं. तो या तो हम टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट, या फिर हम अपनी बंदी और बंदों की बातें डिस्कस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जो हम अपने किसी और फैमिली से नहीं कर सकते आई गेस, या फिर हम यूज़ कर रहे हैं 4-5 दोस्त मिलकर किसी की तोड़े जाके. ऑल ऑफ दोज रीजंस आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली द लास्ट वन. बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम. तो गाइस, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं देयर इज एन इमोशनल रिलीज हमारे अंदर. उसका रीज़न ये है कि वी आर एक्सपीरियंसिंग आवर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ विदाउट पुटिंग आवरसेल्व्स इन डेंजर. तो हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रख रहे हैं जहाँ हम किसी रियल डेंजर में नहीं हैं, बट थ्रू द मूवी, थ्रू द नैरेटिव, थ्रू द प्रोटैगनिस्ट हम वो सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को एक तरीके से फेस कर रहे हैं. इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर. हम अपने आप को ऑलमोस्ट उस डेंजर में डालते हैं, बट वी आर नॉट इन दैट रियल डेंजर, जैसा तुम्हें शायद क्रैशिंग प्लेन में होगा. आई होप एटलीस्ट. सो when you talk to your friends about any kind of problem you have, it's almost the same thing. तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारे दिमाग में चल रही है, you're thinking कि what to do, you have no idea. उसके बाद you talk to your friends about it and you feel much better, right? It's like it's an emotional release. Now that's good, you should feel better, but the problem is कि when you feel better, वो जो urgency है ना to take action, to make things better, कहीं ना कहीं वो भी चली जाती है unless you are really careful about it. So most of the times that's what happens. हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं about any problems, any situation, and we get sort of a satisfactory result. So that's the problem of sharing things with friends and stopping there. So that's why I'm saying use your friends in a better way. Guys, to explain this, let's talk about cats versus dogs. अभी ये बात हम क्यों कर रहे हैं इस बात पे मैं बाद में आऊँगा. But you know, this is a very old debate, cats versus dogs. Which one do you like? First of all, it's a very stupid argument, I guess. We humans just, हम लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए होती है आर्ग्यू करने के लिए जब हम we don't have anything better to do. Anyways, the debate is this. जिन लोगों को cats पसंद है वो ये कहते हैं cats are very independent, right? They're not dependent on you. They're very independent. And dogs are too dependent. जिन लोगों को dogs पसंद है they say, well, dogs love you so much. They love you more than they love themselves. Cats doesn't give a fuck about you. The real difference between cats and dogs is कि ये अलग-अलग animals हैं. Not only that, they are different types of animals. For example, dogs जो होते हैं they are pack animals. Dogs हो गए या फिर horses हो गए, they are pack animals. Cats जो होती हैं they are single animals जो अकेले thrive करती हैं. तो as dogs being pack animals, they cannot help but help each other out. That's the only way they can survive, एक दूसरे की help करके, right? Otherwise they cannot survive as a pack. Now, expecting loyalty from a single animal like a cat is like expecting it to fly. It's just against everything the cat knows. Now, obviously there are some videos जिसमें cats are more loyal than dogs, but that's exception to the rule. So I'm not here for the cat and dog argument, ठीक है? मैं ये बात किसी reason से explain कर रहा हूँ. And the reason is, just like dogs, we humans are also pack animals. The only thing is we are too clever to call our packs, we call them families, or we are also too clever, तो हम अपने pack को family से ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, friends and networking and blah 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 this and that. Now since the time of Stone Age, I don't know if you have noticed or not, we humans, we are very weak. We cannot hunt any animal. तो उस time पे if we cannot hunt anything, we cannot eat anything. तो इसलिए we had other human beings around us, so we would help each other out in hunting and eating and living, और अपने आप को protect करने के लिए. To this day,
we need to help each other out. That's the only way we humans can survive, by helping each other out. That's actually a moral way of living, but also that's the only way of living. तो guys, इस वीडियो में मैं जो भी बात कर रहा हूँ, it all comes down to two words: accountability partners. अब accountability partners क्या होता है? Basically हम कुछ फ्रेंड्स को पिक आउट करते हैं और वो हमें जज करते हैं, राइट तो जैसे मेरा कोई गोल है, मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे मसल गेन करनी है, या फिर मुझे मेडिटेशन करनी है, वट एवर, आई टेल इट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक यार मैं ना ये करना है, इसके लिए मेरा ये प्लान है. एंड एक दिन बाद या फिर एक हफ्ते बाद ही आस्क मी या शी आस्क मी कि कैसा चल रहा है. और सिर्फ इस चीज़ से, सिर्फ इतनी सी चीज़ से हमारे माइंड में एक प्रेशर रहता है कि लाइक यार उसने मुझसे पूछना है कैसा चल रहा है, सो आई बेटर डू समथिंग अबाउट इट. जब हमारा ऐसा कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता ना, तो ऑब्वियसली हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, क्योंकि वी आर नॉट अकाउंटेबल टू आवरसेल्व्स इतना ज़्यादा. एंड एज वी नो, अभी जैसे मैंने छत पे बताया, इट्स इन आवर डीएनए टू हेल्प ईच अदर आउट. आई थिंक इट्स ग्रेट कि तुमने एक फ्रेंड चुना जिसको तुम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन रहे हो जिसके लिए, और तुम्हारे लिए वो बन रहा है. नाउ हाउ टू पिक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स. पहली बात, डू नॉट पिक योर पेरेंट्स. हम लोगों को पहले से ही बहुत ज़्यादा ना वो होता है माइंड में कि यार मम्मी पापा तो बताते ही रहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड दिस एंड दैट वी ऑलरेडी टेक देम फॉर ग्रांटेड, विच वी शुडंट. बट एनीवेज, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट गुड एट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स यूजुअली. सेम गोes फॉर योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड. डू नॉट पिक देम बिकॉज it's just like it might get messy. ठीक है, सो डू नॉट पिक देम इधर. एंड बी वेरी केयरफुल विद द फ्रेंड्स जो तुम पिक करो टू बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, क्योंकि यू नीड रियल फ्रेंड्स. पहली बात, दे शुड बी ब्रूचुअली ऑनेस्ट विद यू. कि अगर तुम वो काम नहीं कर रहे, दे नीड टू बी वेरी रियल विद यू. एट द सेम टाइम दे शुडंट मेक फन ऑफ यू. मतलब तुम्हें ना इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए उनके साथ. यू हैव टू हैव दैट थिंग विद देम कि यू कैन शेयर इट विद देम. क्योंकि जो होता है ना हमारा बिगेस्ट ऑफ ड्रीम्स विच वी कैन नॉट शेयर विद एनीवन बिकॉज वी आर एम्बैरेस्ड. क्योंकि वो इतना बड़ा है दैट कि कोई बंदा सोचेगा नहीं, यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट. यू हैव टू हैव फ्रेंड्स लाइक जिनके सामने तुम वो भी शेयर कर सकते हो, एंड दे विल नॉट जज यू, एंड देन यू टेल देम टू जज यू. बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स. इवन इफ यू डोंट हैव दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स, विच आई अंडरस्टैंड, ज़रूरी नहीं है सबके पास हों. यूज सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया पे बिगेस्ट ऑफ ड्रीम्स डालना या नहीं डालना, दैट्स अप टू यू. आई डोंट माइंड दैट. बट सोशल मीडिया पे यू कैन ऐड मिनी गोल्स. जैसे लोक आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, अगले 7 दिन में रोज़ 100 पुशअप्स करूँगा, एंड यू कैन कीप इट अपडेटेड. और कमेंट्स पे या फिर डीएम्स पे लोग तुम्हें जज कर सकते हैं एज योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स. बट आई वुड प्रेफर रियल जेन्युइन फ्रेंड्स हु आर ब्रूचुअली ऑनेस्ट विद यू, जो डेली चेकअप भी कर सकते हैं, वीकली भी. एंड इट्स अ 2-way रिलेशनशिप. As we know, it is in our DNA. We are pack animals to help each other out, and that's how we grow. Let's use it as our favor. So that's what an accountability partner is, and that's why this video is called Use Your Friends, and also be used by your friends as an accountability partner. So I think अगर you cannot figure out a friend जो तुम्हारे पास है accountability partner बनने के लिए, maybe you should reconsider your friends. And I'm not kidding. I'm not saying ये कोई रोस्ट वे में या फिर कुछ ऐसे तरीके से, बट अगर तुम्हारे पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जिनसे तुम अपनी जेन्युइन लाइफ शेयर कर सको, देन मे बी यू नीड टू रिकन्सिडर द फ्रेंड्स यू हैव. क्योंकि जिनके साथ तुम इतना सारा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो, दे आर प्रॉबली नॉट वर्थ इट. आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे अपनी लाइफ में अलग अलग जेन्युइन फ्रेंड्स मिलते आए हैं हु आर स्टिल बाय माई साइड. सो इसमें आई कंसिडर माई सेल्फ लकी. इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी बीइंग गुड और बैड, बट या I hope you get those friends too. Alright, so that is it. Thanks a lot for watching this video. Again, I hope you guys are following along with the whole writing thing, with the scheduling thing, now with the accountability partner thing. And if you are, it would be amazing to know. So send me a message or comment down below how's things with you. And I hope you'll catch the next video. You'll watch the next video. And yeah, that's it for now. Thanks a lot for watching. Goodbye. मैंने 2-3 बार आंखें मार ली. Okay, bye.